ओके, सो ये दो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को अभी करने हैं. So are you trying or should I explain you? So questions based on halogen derivatives of alkene. Okay. बोलो तुम लोग कर रहे हो या मुझे करना है? ट्राई करते हैं सर. करो. Yes. अमृता. Yes, sir. करतेस कमी दाखव. स्वप्नील. आर्यन जी. क्या है? How will you convert 2 chloropropane to 1 chloropropane? So 2 chloropropane का स्ट्रक्चर ये है एंड 1 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या है? 1 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ये है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑल दीज रिएक्शंस वी ऑलरेडी डन. ध्यान से देखो कैसे करना है. पहले ना मैं इसको कन्वर्ट करता. देखो 1 क्लोरो मतलब Cl minus is bonded with carbon containing more number of hydrogen. तो पहले इसको मैं कन्वर्ट करके लेता हूं अल्कीन में. सो अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? When I heat this with alcoholic KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन. तो एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन होगा. मतलब ये अल्फा कार्बन है तो ये क्या हो गया? बीटा कार्बन. दिस वन इज बीटा कार्बन. सो द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन इज, कोई भी एक हाइड्रोजन तुम लोग उठा सकते हो. सो दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज व्हाट? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. बाय प्रोडक्ट क्या होगा? KCl and H2O. Is that clear? So this is nothing but what? Propene. Right? Now, this is further I am reacting with HBr. Because याद रखना HCl do not give you peroxide effect. HCl peroxide effect नहीं देता.
बट HBr देता है. So मैं क्या कर रहा हूं? I am reacting this alkene to HBr. So what will be the product? CH3, CH2, CH2, Br. What is this? 1 bromopropane. But sir, they ask you to find or to prepare 1 chloropropane. Okay, we are coming to that point also. तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन हो गया. अच्छा, 1 ब्रोमोप्रोपेन को मैं हीट कर सकता हूं aqueous KOH के साथ. aqueous KOH क्या करता है? SN रिएक्शन. यहाँ पे होगा SN2 रिएक्शन. यहाँ पे होगा E1 मैकेनिज्म. समझ में आ रहा है? तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है? Br minus is replaced by OH minus. So what will be the product? CH3, CH2, CH2, OH. What is this? Propane 1-ol. Propane 1-ol. Now, this is react with, अभी कोई भी एक reagent use करो. मैं use करता SOCl2, thionyl chloride. SOCl2 is nothing but what? Thionyl chloride. So OH is replaced by what? Cl. देखो मिल गया कि नहीं मिल गया product? Okay. So 1 chloropropane. All these reactions we discussed in class. सब reactions हम लोगों ने देखे. ये all these reaction मिला के मुझे ये product मिला. By product रहेगा SO2, which is not required over here, but we'll write that. समझ में आया? देख लो reaction को. अच्छा, anybody has used different method? वो भी हो सकता है. You can prepare different method also. Yes. हो गया सबका? Everybody done? Hello? Yes, sir. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. द डाइपोल मोमेंट, ये तुम लोग को मैं होमवर्क देता हूँ. यू सेंड
answer for this. Draw the structure, the dipole moment of chlorobenzene. So everybody know the structure of chlorobenzene. Okay, and cyclohexyl chloride. ऐसा है. तो डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो इसका डाइपोल मोमेंट mu1, इसका मैंने mu2 लिया. So they are saying mu2 is greater than mu1. Why? Okay, so this is the homework question. हाँ, send करना मुझे. ठीक है? Hello. Yes, sir. Think about Yes, it. sir. थोड़ा सा सोचो, इसके ऊपर काम करो, फिर हो जाएगा. चलो अभी ये क्वेश्चंस लो. Convert the following. Everybody can see this. सबको दिख रहा है? Propane Yes, sir. to propane 1-ol, benzyl alcohol to benzyl cyanide, ethanol to propane nitride, butane to butyl and butyl chloride, iodide, 2-chloropropane to propane 1-ol, third butyl bromide to ice. अच्छा, यहाँ पे all these reactions are minimum 2 steps. So refer the notes. जो हम लोगों ने रिएक्शंस लिखे हैं ना, उसको एक बार देखना. यहाँ पे एक स्टेप में तुम लोग का आंसर नहीं मिलेगा. सॉल्व. कितने क्वेश्चंस है? 8 क्वेश्चंस है. सो आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स टू सॉल्व दिस. सॉल्व.
the things which you are not getting, leave it. Okay, but do trial and error. रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, बट यू स्टार्ट. अभी देखो जैसे हम लोगों ने ये किया था रिएक्शन, दिस वन, ये कैसे किया था. सो रिमेंबर दैट यू मे हैव, मतलब कुछ लोगों का आंसर दूसरे लोगों के साथ मैच भी नहीं होगा, कुछ अलग मेथड भी होगा, बट वो ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस हम लोगों ने किए उसमें से ही होने चाहिए.
यस बच्चों लोग, क्या हो रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? सर लास्ट वन. बाकी लोग? संदेश येताय का रे बाबा? सर यस सर करतोय. गुड. आदित्य, ओ आदित्य भाऊ, यस सर. येताय का? हो करतो. अच्छा अच्छा. यश यस सर. येताय का? थोडं थोडं. व्हेरी गुड. ठीक आहे, सुरुवात आहे रे. ऑर्गॅनिक आता आपण सुरुवात केली आहे, सो थोडं थोडं येणार, हळूहळू येणार. ऑर्गॅनिक मध्ये तुम्हाला एकदम पटकन रिझल्ट नाही मिळणार. काय आलं? हम कर ना, पहिलं पण कर ना साली. पहिलं दुसरं तर सोपं आहे. जरा डोकं लाव ना, कसं काय करणार बघ. प्रोपीन टू प्रोपेन वनॉल करायचं आहे, राईट? ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. करू आपण. ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन. जिन लोगों ने किया है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया नाराज मत होना, आएगा. हाँ, ऑर्गेनिक धीरे 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 आएगा. वी एक्चुअली फोर्स्ड इन ऑर्गेनिक फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड. 11th स्टैंडर्ड में जो ऑर्गेनिक था वो ना के बराबर था. ओके, सो अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है. प्रोपीन टू प्रोपेन वनॉल. सो आई एम राइटिंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ओके चलो मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर. You are supposed to write name of all organic compound. Propane one. There is one direct method also. मैं direct method अभी नहीं बता रहा. मैं I'm going to react this with HBr. मतलब इसका एक direct method है that we'll see in preparation of alcohols. So इसलिए अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा. Okay. So when propene react with HBr in presence of peroxide, benzoyl peroxide or hydrogen peroxide or or acetic acid etc. एंटी मार्कोनिक का फ्रूट खराश इफेक्ट होगा. सो क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 Br. नाउ दिस इज सिंपल. इसको मैं रिएक्ट करूंगा किसके साथ? aqueous KOH. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. aqueous KOH is for nucleophilic substitution, alcoholic KOH for elimination. So what will be the structure? CH3 CH2 CH2 OH. इसका नाम लिखो. इसका नाम है 1-ब्रोमोप्रोपेन. ओके, इसका नाम है प्रोपेन वनॉल. ठीक है. सेकंड देखो, सेकंड स्ट्रक्चर बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल साइनाइड. अभी बेंजाइल अल्कोहल क्या है? आई थिंक ये मैंने बताया था. बेंजाइल ग्रुप क्या होता है? The benzyl group is this CH2. इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप. अल्कोहल मतलब यहाँ पे आएगा OH. So write down बेंजाइल अल्कोहल. ये कॉमन नेम है. दिस इज कॉमन नेम. बेंजाइल अल्कोहल रिएक्ट विद. अच्छा, इसको साइनाइड में कन्वर्ट करना. तो पहले इसको कन्वर्ट करो तुम लोग क्लोराइड में या ब्रोमाइड में, आयोडाइड में, कोई भी है. So कोई भी any one method you can use. Okay, so यहाँ पे मैं SOCl2 यूज करता हूँ, thionyl chloride in presence of pyridine. क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हाईली प्योर. अच्छा बाय द वे, इस रिएक्शन को मैंने बताया नहीं था. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डार्जन्स रिएक्शन. डार्जन्स रिएक्शन. So please note down this. Conversion of alcohol into chloride by using thionyl chloride is called as Darzan's reaction. So what is the product? OH is replaced by Cl. तो CH2 से देखो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो रहा है.
हाँ, ऑर्गेनिक में ये बहुत अच्छी बात होती है कि वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट फंक्शनल ग्रुप कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, इसलिए रिएजेंट क्या लगे। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। Name of this compound is what? Benzyl chloride. Now this is further react with potassium cyanide, alcoholic potassium cyanide. तो अभी यहाँ पे क्या होगा? Nucleophilic substitution. Cl minus is replaced by Cn minus. So what I have? CH2Cn. हो गया कि नहीं? Benzyl cyanide minus KCl होगा यहाँ पे. The name of this compound is benzyl cyanide. अच्छा, कितने लोग ये दो क्वेश्चंस करेक्ट आए, जरा बताओ मेरे को। How many of you got the correct answer? Please tell me. चैट बॉक्स में डाल दो। यस सर, यस सर, यस सर। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करेक्ट किसके आए? हाँ, we can use PCl5 यूज कर सकते हो, PCl3 यूज कर सकते हो, SOCl2 यूज कर सकते हो, लुकास रिएजेंट यूज कर सकते हो, रेड फास्फोरस पर ब्रोमीन यूज कर सकते हो, रेड एनीवन। हाँ ठीक है आर्यन जी, सेकंड समझ में आया ना? ध्रुव, अरे वाह ध्रुव, वेरी गुड। फर्स्ट 2 राइट, वेरी गुड। ओके, फर्स्ट आला, सेकंड आला, सोहम करेक्ट, वेरी गुड। अवली फर्स्ट करेक्ट, सेकंड मध्ये गडबड। ओके, अमृता ओके, बालचंद्र वेरी गुड, संदेश, स्वप्नील फर्स्ट करेक्ट, आदित्य वेरी गुड, संदेश। यस सर। अल्कोहल कन्वर्जन नहीं आया मतलब? अच्छा वो वाला भूल गया फिर। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ना कि क्या होता है मालूम है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ना वो जो तुम लोगों ने प्रीवियस रिएक्शन से किया ना उसका बार बार रिवीजन होता है एवरी टाइम, तो इससे वो याद रहता है। इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ लिखो, रीजन वो होता है, ठीक है। अदरवाइज ना ये याद रखना बहुत हेडेक है। लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक बाय हार्ट करके आता है, तो इसका मतलब उनको ऑर्गेनिक नहीं समझा, अभी थर्ड वाला रिएक्शन मुझे करके बता। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग करके बता, जिन लोगों ने किया है मुझे चैट बॉक्स में डाल दो कैसे किया है वो। थर्ड वाला रिएक्शन और सेकंड वाला रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है। यस करेक्ट कार्तिक, सही है, वेरी गुड। बता दूं मैं अभी? चलो देखो तीसरा वाला रिएक्शन करेक्ट है कि नहीं देखना। थर्ड वाले रिएक्शन में होगा इथेनॉल CH3CH2OH, इसको वापस अल्काइल हैलाइड कुछ भी रिएजेंट ले सकते हो जो हैलोजिनेटिंग है, PCl5 PCl3 व्हाटएवर इट इज। अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HBr,
Now HBr we are generating कैसे? NaBr plus H2SO4 so that the product is CH3CH2Br ethyl bromide. बस इसको रिएक्ट करो पोटेशियम साइनाइड के साथ अल्कोहल. So what will be the product? CH3 CH2 Cn. This is called as 1 2 3. Hence the name is what? Propane nitrile. Okay, plus what? KBr. Is that okay? कितने लोग का सही आया ये? कितने लोग का सही आया? फोर्थ वन देखो अभी. ब्यूट-1 का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 को कन्वर्ट करना है N ब्यूटाइल आयोडाइड में. तो मैं पहले ना इसको HBr, यही रिएक्शन है, 1 करना है तो पराऑक्साइड इफेक्ट. बाकी कोई भी दूसरा रिएजेंट हम लोग यूज नहीं कर सकते यहाँ पे. Hence the product is CH3 CH2 CH2 CH2Br. This is nothing but 1-bromobutane. अभी 1-bromobutane को आयोडोब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वहां पे एक रिएक्शन था, फिंकलस्टन रिएक्शन. क्या है? NaI प्लस एसीटोन. ये मुझे क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं. तुम लोग को भी आएगा. इसका रिएक्शन है नाम है फिंकलस्टन रिएक्शन. इसमें हैलोजन एक्सचेंज होता है. So the product is what? CH3 CH2 CH2I. I'm sorry. और एक I CH2 होना चाहिए plus NaBr. This is 1-iodobutane. This is what? 1-iodobutane. अच्छा, ये दो लोग कितने लोग का बराबर है? 2 questions correct. कितने लोग का है? How many of you got the correct one? Third? अरे सुरीन, सेकंड वाले जैसा ही था ना. अच्छा, if anybody has done some different way तो भी बता दो. अगर दूसरे तरीके से किया है तो भी बोल देना. सो फोर्थ वाल्यामध्ये HBr नी रिॲक्ट केल्यावर KOH वापरला आणि मग HI वापरलं. हाँ चालेल. Commercially it is not viable. Okay, industrially we are not supposed to use more and more reagents क्योंकि उसका efficiency कम होते जाता है. That's okay, no problem. चलो लिख लो ये जल्दी. Come fast. We'll start today alcohols and alcohol phenol ether. इसके मुझे MCQs भी करने हैं एक्चुअली. नेक्स्ट लेक्चर में MCQs करने पड़ेंगे इसके, सो दैट वो जो संदेश और उनको फिर दूसरा काम देना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2-chloropropan to propane 1-ol. ये किया है ना हम लोगों ने. यहाँ पे देखो 2-chloropropan 2 ये हो गया, ये आ गया ना. ये देखो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप आ गया ना ये आंसर. 2-chloropropan to propane 1-ol. यहाँ तक ही रुकना है. ओके
So I hope ये तो सबको आना चाहिए अभी. Yes, this is the answer for fifth one. Sixth क्या है? Tertiary butyl bromide to isobutyl bromide. Very good. Sixth question. क्या है? Tertiary butyl bromide to isobutyl bromide. क्या है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड? इसको पहले मैं रिएक्ट करता हूं अल्कोहलिक KOH के साथ और एनी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम इथॉक्साइड वगैरह भी यूज कर सकता हूं, सो दैट द मेजर प्रोडक्ट इज ये रहेगा. करेक्ट. Now this is further react with HBr in presence of peroxide. जिसने ये क्वेश्चन बनाया ना, ओके, खराश का मतलब खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट वाला फेवरेट रहेगा. Almost in every question they are using peroxide. आ गया. आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इसको बोलते हैं. आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. नेक्स्ट क्या है? एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन. आई थिंक ये तो सबको आना चाहिए. क्या रिएक्शन है? एनिलीन. कल ही किया हम लोगों ने. दिस आई रिएक्ट विथ व्हाट? NaNO2 प्लस HCl, है ना. एक्चुअल रिएक्शन किसके साथ है? नाइट्रस एसिड के साथ. सो दैट विल गिव यू व्हाट? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड N2 plus Cl minus. Benzene diazonium chloride. Now this benzene diazonium chloride react with cuprous chloride plus HCl. कौन सा रिएक्शन है ये? Sandmeyer's reaction. Sandmeyer's reaction. What will be the product? यहाँ पे आएगा क्लोरीन प्लस नाइट्रोजन गैसेस सेपरेट. Okay. Next question. Propene to 1-nitropropane. Propene to 1-nitropropane. ये भी वही है. Propene CH3 CH double bond CH2 react with HBr in presence of peroxide. Okay, so that the product obtained is CH3 CH2 CH2Br. Nitropropane करना है तो react with AgNO2. So Br is replaced by NO2. Therefore, the product is CH3. CH2 CH2 NO2 plus AgBr. Right on this.
चलो डन एवरीबॉडी। बता रहा हूं मैं। देखो अभी पहले वाले का आंसर दे। फर्स्ट वाले में आंसर है 2-bromobutane react with alcoholic KOH. 2-bromobutane react with alcoholic KOH. So when I use alcoholic KOH, मतलब ये रिएक्शन कौन सा है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। This reaction is what? Elimination reaction. So यहाँ पे कौन सा रूल होगा? सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये है अपना मेजर प्रोडक्ट। What is that? Butane। हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूं according to Sedgwick rule. What the Sedgwick rule is saying? Sedgwick rule ये बोलता है कि alkene form must be highly branched. This react with Br2 bromine. So अगर मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया तो क्या होगा? What will be the product? CH3. The addition is taking place. So this is the product. ये actually 11th standard में reaction है. And hence name of this compound is 2,3 dibromobutane. Now when it react with NaNH2, NaNH2 में NH2 minus is a very strong base. So पहला product मुझे ये मिलता है। देखो ध्यान से देखना CH3 CHBr डबल बॉन्ड। यहाँ पे CHBr नहीं होगा, CBr होगा, डबल बॉन्ड CH3। Further it react with NaNH2 second molecule so that अभी यहाँ पे देखो पहले केस में क्या हो गया? Br माइनस चला गया and this hydrogen is removed, hence there is a double bond. Second case में Br माइनस यहाँ से जाएगा and the hydrogen, hence the product is CH3 C triple bond C CH3। इधर ये रहेगा but2yne butane। okay, next one B, isopropyl alcohol CH3 CHOH CH3 react with PBr3, so OH is replaced by Br, so what will be the product? CH3 CHBr CH3 2-bromopropane. When it react with excess of ammonia, SN reaction, Br minus is replaced by NH2. So the product is CH3, CHNH2 and CH3. इसका नाम है प्रोपेन टू अमाइन। Propane to amine. Is that clear? Who got the correct one? ये correct किसको आया? Yes. चलो अभी और कुछ देखते हैं क्या यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे अपना हैलोजन डेरिवेटिव मेरी तरफ से खत्म हो गया। नाउ तुम लोग क्या करोगे, होमवर्क बता रहा हूं, मतलब ये करते रहना तुम लोग। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, मतलब सीबीएसई टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, स्टैंडर्ड 12 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसको आंसर करो। एचएससी टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, अगर मैं नोट्स तुम लोग को दूंगा, ये जो है ना पीडीएफ में तुम लोग को शेयर करूंगा, सो गो थ्रू दैट नोट्स, इज दैट क्लियर? तो ये हो गया अपना हैलोजन डेरिवेटिव खत्म। ये होमवर्क है तुम लोग को। सो सीबीएसई इसमें से जो क्वेश्चंस है उसको करना, जो डाउट्स रहेंगे वो मैं, हम लोग चाहिए तो पूछ लेना, मुझे मैसेज कर देना, ओके? या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अगर है तो। आई वांट टू डिस्कस एमसीक्यू। सो एक कोई तो हम लोग ना डे पकड़ के रखते हैं, उस दिन सिर्फ हम लोग एमसीक्यूज करेंगे उसके। नाही, आज सीबीएसई आज नका म्हणजे हा सीबीएसई फक्त ते एक क्वेश्चन आहे ना, त्याचा आन्सर मला आज पाठवायचा, आणि डेली जे आपण काम करणार आहोत ते तुम्ही पाठवायचं। द डेली वर्क यू आर सपोज टू सेंड मी एज इट इज, होमवर्क यू सेंड मी लेटर ऑन, नेक्स्ट वीक तक कर, मतलब नेक्स्ट मंडे तक कर देना, करके भेजना मुझे, ओके? डू इट टिल मंडे। हाँ, डेली कुड बी रैंडम जो तुम लोग को अच्छा लगे, बट वो ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। एंड व्हाटएवर वी व्हाट आई यू लर्न टिल नाउ, from that only, so either it is from my notes, from notes, printed notes, or from textbook, okay? Specifically I will suggest you go stick to the question answers, organic mein question answer. I am also thinking in that way. So every Wednesday we can take MCQs of organic, मतलब जितना भी हम लोग कर रहे हैं उसका MCQs मैं उसके पहले एमसीक्यू शेयर करूंगा तुम लोग के साथ, यू सॉल्व इट, या कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके? एंड देन वेडनेसडे को हम लोग को डाउट्स रहेगा, जो भी कुछ रहेगा, क्योंकि आई डोंट हैव दैट मार्वल बुक विथ मी नाउ, तो उसको तुम लोग सॉल्व करते रहना। रदर ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, बहुत सारे तुम लोग के डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? सो एवरी वेडनेसडे यू विल हैव अ एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास में, जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सो मंडे और ट्यूसडे हम लोग करेंगे थियरी, ठीक है? अच्छा, भावना मैडम का क्या चल रहा है? डी एंड एफ ब्लॉक खत्म हो गया? नाही सर, डी एंड एफ क्या मेटलर्जी चालू आहे आता, डी ब्लॉकचं संपत आलं, मेटलर्जी चालू आहे। अच्छा, एफ ब्लॉक नाही झालाय ना अजून? नाही सर। Okay, once again, alcohols are organic hydroxy compound, rather more correctly I can say aliphatic hydroxy compound. So general representation है ROH. Alcohols and ethers are functional isomers of each other. Therefore, they have a general formula. CN H2N plus 2 O. CN H2N plus 2 O. Okay? ठीक है? एक एग्जांपल देता हूं, just look at here. If I say C2 H6O, अगर ये मैंने बोला, तो इसका अल्कोहलिक फॉर्म कौन सा है और ईथर फॉर्म कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। अल्कोहलिक फॉर्म है CH3 CH2OH, दिस इज नथिंग बट इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, और ईथर फॉर्म है CH3OCH3, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। Please write down.
New chapter, huh? New chapter. चलो हो गया ये? Done everybody? Yes? यस सर। चलो अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। Classification of alcohol. So alcohols are mainly classified depending upon the number of OH group. Okay. So we have monohydric alcohol, dihydric alcohol, so first one is monohydric alcohol. What do you mean by monohydric alcohol? When there is one OH group like ROH, it is also called as alkyl alcohol, which are further classified same way, sp2 and sp3, same as that of the. So I call it as a one OH group attached to the sp3 carbon and OH group attached to the sp2 carbon. sp3 carbon we have a primary alcohol, then we have a secondary alcohol, okay, then we have a tertiary alcohol, then we have a allyl alcohol, and we have a benzyl alcohol. Benzyl alcohol. When attached to the sp2 carbon, again here there are two types. One is vinyl
and the other one is aryl, which is nothing but phenol. So vinyl alcohol CH2 double bond CHOH, or phenol, it's a phenol, huh? OH is directly attached to benzene. So phenol. Then we have a dihydric alcohol. Dihydric alcohol, they are also called as glycols. Glycols. Example, common name glycol. CH2OH, CH2OH. So name of this compound is ethylene glycol. Common name, ethylene glycol. IUPAC name होगा ethane 1,2-diol. Then trihydric alcohol. Trihydric alcohols are also called as glycerol. Glycerols. Example, CH2OH, then CHOH and CH2OH. इसको बोलते हैं glycerol. ग्लिसरीन जो होता है ना, ग्लिसरीन, ये है वो कंपाउंड. एंड देन पॉलीहाइड्रिक, उसमें एक एग्जांपल मैं देता हूं. पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में एग्जांपल है सॉर्बिटॉल. ओके, नॉट एग्जांपल का, आई एम गिविंग द एग्जांपल ओवर हियर, जिसका नाम सॉर्बिटॉल है. CH2OH, CHOH 4 टाइम्स, मतलब ऐसे रहेगा CHOH. Then we have a CHOH, CHOH and CH2OH. 6 OH groups, है ना? So name of this compound is sorbitol. Hexahydric alcohol. Hexahydric alcohol. Okay, toothpaste वगैरह में इसको use करो. Ethylene glycol is used as a solvent which is added in this what we call it as a, we are adding in petrol. गैसोलीन में ऐड करते हैं टू एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, राइट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज रुकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रिएक्शंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस करेंगे. प्लीज राइट आउट दिस पार्ट. अवनी वेट.